ہو گئی۔ بھائی لاسٹ اس سے نیچے نہیں جائے گا یہ۔ مہنگائی اور بجلی کے زائد بلوں کے خلاف آج ملک بھر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے۔ ہڑتال کی کال جماعت اسلامی اور تاجر تنظیموں کی طرف سے دی گئی ہے۔ کراچی، لاہور اور پشاور، کوئٹہ، اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف چھوٹے بڑے شہروں میں دکانیں اور کاروباری مراکز بند رہیں گے۔ سڑکوں پر ٹرانسپورٹ اور بسیں بھی معمول سے کم ہیں۔ وکلاء نے بھی ہڑتال کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ گمبٹ میں ناریچو برادری کی معمولی تنازع پر فائرنگ، ایک شخص جاں بحق۔ فائرنگ کا واقعہ نواحی گاؤں پیر محمد ناریچو میں پیش آیا۔ مرنے والے کی شناخت محراب ناریچو کے نام سے ہوئی۔ پولیس نے لاش ہسپتال منتقل کر دی۔ پولیس جھگڑے کی تحقیقات میں مصروف عمل ہے۔ شاہکوٹ میں پہاڑی والی جھیل کے قریب کھیلتے ہوئے دو تمسن بھائی جھیل میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ ڈوبنے والے بچوں کی شناخت 3 سالہ مقدر اور 5 سالہ رملہ کے نام سے ہوئی ہے۔ ریسکیو عملے نے مقامی افراد کی مدد سے دونوں بچوں کی لاشوں کو نکال لیا۔ کراچی میں 2 روز قبل شاہراہ فیصل پر ٹہلنے والے شیر کو عدالتی حکم پر کراچی چڑیا گھر منتقل کر دیا گیا۔ مالک کی جدائی پر پریشان شیر نے 2 روز کھانا نہیں کھایا تو نڈھال ہو گیا۔ چڑیا گھر کے انتظامیہ کو شیر کی زندگی کی فکر لاحق ہو گئی، مگر پھر صورتحال اچانک بدل گئی۔ واضح رہے مالک اس کو بہت محبت سے رکھتا تھا اور موڈ کے مطابق من پسند خوراک مہیا کرتا تھا۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ڈسٹرکٹ بلیٹن کے ساتھ میں ہوں حسین حیدر اور میں ہوں اقصیٰ خان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانے بلیٹن کا باقاعدہ آغاز مگر اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ڈی پی او اٹک کی خصوصی ہدایات پر پولیس کے ضلع بھر میں مختلف مقامات پر کارروائیاں جاری ہیں۔ 9 جرائم پیشہ افراد پکڑے گئے۔ گرفتار ملزمان میں مرزا حارث بیگ، ثریا کوثر، نظر عباس، امیر خان، شہبیز، بابر علی، زاہد خان، کبیر مسیح، ناصر غوری نامی شخص شامل ہیں۔ جی بالکل، ان کے قبضے سے بھاری مقدار میں چرس، 41 لیٹر شراب، اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ کارروائیاں تھانہ صدر، تھانہ پنڈی گھیپ، تھانہ بسال، تھانہ جرن، تھانہ سٹی اٹک پولیس نے کی۔ ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تفتیش کا عمل بھی جاری کر دیا گیا۔ بنو کی تحصیل میریان اور بکا خیل کے مشیران اور نوجوانوں نے گیس کی فراہمی کے لیے انکار کر دیا ہے۔ کسی بھی صورت گیس کی فراہمی سے پیچھے نہ ہٹنے کا اعلان کیا گیا۔ سابق صوبائی وزیر ملک شاہ محمد خان کی زیر صدارت جرگہ منعقد ہوا۔ بکا خیل کی طرح تحصیل میریان کو بھی اعلیٰ حکام سے ملاقات کے حوالے سے آگاہ کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں قوموں کی فریاد اعلیٰ حکام تک پہنچائی جا چکی ہے۔ ایس ایم ایس کی منظوری ہو چکی ہے۔ بکا خیل اور میریان کے لیے ایس ایم ایس لگایا جائے گا۔ جیسے ہی پابندی ختم ہوگی انشاءاللہ دونوں تحصیلوں کو گیس کی فراہمی کے لیے یقینی بنا دیا جائے گا۔ اور کشمور میں مغزیوں کی بازیابی کے لیے دوسرے روز بھی مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے۔ تمام چھوٹے بڑے کاروباری مراکز اور دکانیں مکمل طور پر بند ہیں۔ مغزوں کے غصہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کشمور، بڈانی، بخشا پور کے تمام نجی سکول بھی بند رہے۔ مغزوں کی بازیابی تک سندھ، پنجاب اور بلوچستان کی سرحد ڈیرہ موڑ کے مقام پر دھرنا دینے کا اعلان ہے۔
खबर शामिल करें शहदाद कोर्ट से, जहां सेलर नौजवान इत्तेहाद ने परिया कुमारी की बाजियाबी, सकर के शहीद सहाफी जान मोहम्मद मेहर और रानीपुर की फातिमा के वर्सा को इंसाफ की फराहमी के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया गया। अब्दुल हमीद भट्टी की ये रिपोर्ट देखिए। के सहाफी शहीद जान मोहम्मद मेहर के कातिल गिरफ्तार न होने, रानीपुर की 13 साला फातिमा फरड़ो और सखर की प्रिया कुमारी की बाजियाबी के लिए जुल्फकार सीलरो, सरदार गुलाम मुर्तजा सीलरो, तारिक हुसैन सीलरो और दीगर की निगरानी में हुसैनी चौक से लेकर शहदाद कोट प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकालकर मुजाहरा किया गया। रैली में शहर के तमाम सिविल सोसाइटी के लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली के शुरकाओं ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठाकर हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारा ये मुतालबा है रियासत से, खास करके आर्मी चीफ और सुप्रीम कोर्ट से, कि 25 से 26 दिन हो गए हैं जान मार को शहीद किया गया है सखर में, अब तक उनके कातिल गिरफ्तार नहीं हुए हैं। और फातिमा फरड़ो जो है वो असद शाह को जो गिरफ्तार तो किया गया है, मगर अब तक उनके कातिलों पर वो कत्ल के जो कलम है वो नहीं लगे हैं। और उसके साथ हमारी पूरी सिंध जो है सर पर एहतजाज है। वो जो हमारी प्रिया कुमारी है वो हमारी बेटी है, वो सिंध की बेटी है। हमारा ये गवर्नमेंट से मुतालबा है कि जल्द से जल्द प्रिया कुमारी को आज़ाद करके ये सिंध वालों हमारी बेचैनी ख़त्म की जाए। असांजो एहतजाज इहो आहे त जान मोहम्मद सहाफ़ी हिकु तमामु बहितरीनु हक़ सख़्त लिखंदड़ हुयो, जंहिंखे साज़िश तौरु क़तल कयो वियो, जंहिंजा जवाबदार हिन वक़्त ताईं गिरफ़्तार न कया विया आहिनि। जेकॾहिं उनखे चवंदा त बाबा तव्हां हिन वक़्तु जवाबदार गिरफ़्तार छो न था कयो, हू चवंदा त कचे में लिकी विया आहिनि। रियासत खां का बि अहिड़ी शइ, पुलिस खां का बि अहिड़ी शइ लिकियल कोन्हे जेका उन्हनि खां लिकी सघे। हे हिकिड़ी साज़िश आहे, हीउ हिकिड़ो जेको आहे त सियासी इंतकाम आहे। जेकॾहिं जान मोहम्मद जा कातिल गिरफ़्तार न थिया, या फातिमा जे खून सां इंसाफ़ न थियो, प्रिया कुमारी खे बाज़ियाब न कयो वियो, हीअ असांजा एहतजाज, ये असांजा धरना तेस ताईं हलंदा रहंदा। गंबट के करीब नवाही गांव तगील खास खैली बुनियादी सहूलियात से महरूम है। पीने का साफ पानी ना निकासी आपका इंतजाम है। सड़कें भी टूट फूट का शिकार हैं। इलाके में गेनों का एहतजाजी मुजाहरा। आला हुकाम से नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। मजीद देखते हैं फरहान बलोच की इस रिपोर्ट में। गंबट के करीब फकीराबाद के गांव तग्यल खासकेली जदीद दौर होने के बावजूद भी बुनियादी सहूलतों से महरूम होने की वजह से गांव के लोगों ने एहतजाज किया है। एहतजाज करते हुए कोहिनूर न्यूज़ टीवी से कहा है कि हमारे जो एमपीए एमएनए को इतनी भी वो जो शर्म नहीं आती, हमारे को शर्म होती है। बार बार हम ये कहते हैं, ये करते हैं, एहतजाज करते हैं। ये रोड है हमारा, ये रोड जो है 2 साल से इधर ही पड़ा है। इधर ये सारे पत्थर हैं वो निकले पड़े हैं। ये हमारा गांव है, इसलिए बार बार एमपीए एमएनए हर कोई जो आया है इधर वायदे करके गया है, मगर इस वक्त तक ना बिजली है, ना रोड है, ना कोई और बुनियादी सहूलत है, कुछ भी नहीं है। हमारे को अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे को भी शर्म आती है, मगर हमारे हुक्मरानों को कोई शर्म नहीं आती। पियो आहे असांजे रोड ते ऐं असांजो ॻोठ मोहम्मद तगिल ख़ासि करे बुनियादी सहूलतुनि खां बि महरूम आहे। 2-3 चकर असां रिकॉर्ड करायो आहे, एहतजाज बि, इन जे बावजूद बि असांजो तदारक न कयो वियो आहे। ऐं 2-3 चकर असां एहतजाज कयो आहे, हिते बि रिकॉर्ड बि करायोसीं, त बि कोई बि तक जो एमएनए हुजे, एमपीए हुजे, असां वटि न आयो। न ई असांखे सिर्फ़ु ख़ाली रुगो ठला आसरा आहिनि, ॿियो न को कमु कयो वियो आहे, न ई असांखे बिजली जूं असां उते पुॼायूं आहिनि, रिपोर्टूं बि पुॼायूं आहिनि, हर शइ पुॼायूं आहिनि, त बि असांजो कुझु बि न कयो वियो आहे। असांजो इहो मुतालबो आहे त असांजो जेको आहे बुनियादी सहूलतूं ॾिनी वञनि, असांजो रोड ठाहियो वञे ऐं असांखे बिजली बि ॾिनी वञे। कैमरा टीम के साथ फरहान बलोच, कोहिनूर। वहीं दूसरी जानिब गंबट में नारीचो बरादरी की पुराने तनाज़े पर फायरिंग से एक शख्स मौका पर जाँ बहक हो गया। फायरिंग का वाकया नवाही गांव पीर मोहम्मद नारीचो में पेश आया। मरने वाले की शिनाख्त मेहराब नारीचो के नाम से हुई है। पुलिस ने लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। एसएचओ मोहम्मद आसम मेमन ने कहा कि झगड़े की तहकीकात अभी तक जारी हैं। जैसे ही कोई सामने आती हैं तो मुकदमा किया जाएगा।
पेशावर से दिल दहला देने वाली खबर से आपको आगाह करें कि पेशावर के इलाके खजाना में 6 साल बच्ची को ज़ियादत के बाद कत्ल करने वाले मुलजिमों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान ने नन्ही आयशा को 2 रोज कबल ही ज़ियादती के बाद कत्ल करके लाश खेत में फेंक दी थी। एसपी रूरल डिवीजन जफर अहमद खान का कहना था कि गिरफ्तार मुलजिम कामरान बच्ची का करीबी रिश्तेदार था। जी बिल्कुल, दोस्त अमानुल्लाह के साथ मिलकर बच्ची को हवस का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिया गया। दोनों मुलजिमान ने इब्तदाई तफ्तीश में जुर्म का एतराफ कर लिया है। वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन कसूर में थाना सदर पुलिस ने 8 साला तालिबा के साथ नासेबा हरकत करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शिनाख्त तकी रजा के नाम से हुई है। वाकया अली पार्क के इलाके में पेश आया। अली पार्क के रिहायशी मोहम्मद इरफान ने 8 साला भतीजी मुस्कान के साथ नामालूम मुलजिम के साथ मिलकर जिनसी हमले की इत्तला दी थी, जिस पर थाना सदर पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम तकी रजा को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। वज़ीर आला पंजाब के हेल्थ रिफॉर्म विजन के मुताबिक सूबे के टीचिंग अस्पतालों को बेहतर बनाने के लिए कायम किए गए वर्किंग ग्रुप का एक इजलास हुआ। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन डॉक्टर एहतशाम अनवर की ज़ेर सदारत इजलास में डीसी ज़हीर अनवर जप्पा, प्रिंसिपल कायद आज़म मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर सोफिया फरख, एडिशनल कमिश्नर इज्तिमाल इशफाक हुसैन सयाल और एमएस विक्टोरिया अस्पताल डॉक्टर आमिर बुखारी और दीगर अफसरान ने भी भरपूर अंदाज में शिरकत की। कमिश्नर बहावलपुर ने इजलास से खिताब करते हुए क्या कहा, इस हवाले से आपको बताएं कि फजल जावेद खान की ये खसूसी रिपोर्ट देखिए। वज़ीर पंजाब के हेल्थ रिफॉर्म डिवीजन के मुताबिक सूबे के टीचिंग अस्पतालों को बेहतर बनाने के लिए कायम किए गए वर्किंग ग्रुप का एक इजलास कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन डॉक्टर एहतशाम अनवर की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास में डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर, प्रिंसिपल कायद आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर प्रोफेसर डॉक्टर सोफिया फरक, एडिशनल कमिश्नर इज्तिमाल इशफाक हुसैन सयाल, असिस्टेंट कमिश्नर जनरल सैयद मोहम्मद तैयब, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी मोहम्मद अदील खान, एमएस बहावलपुर अस्पताल डॉक्टर आमिर बुखारी, सीईओ हेल्थ सैयद तनवीर हुसैन, एससी बिल्डिंग अनवर आदिल, एक्सएम बिल्डिंग नदीम अरशद शरीक हुए। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन डॉक्टर एहतशाम अनवर ने इजलास से खिताब करते हुए कि बहावलपुर अस्पताल को बेहतर बनाने, जारी तरक्याती मंसूबों को तेज़ी से मुकम्मल करने और दस्तियाब वसाइल के मुताबिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मुस्तक़िल इक़दाम बुरक़रार लाए जाएंगे। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन डॉक्टर एहतशाम अनवर ने इजलास से खिताब करते हुए कि बहावलपुर अस्पताल को बेहतर बनाने, जारी तरक्याती मंसूबों को तेज़ी से मुकम्मल करने और दस्तियाब वसाइल के मुताबिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मुस्तक़िल इक़दाम बुरक़रार लाए जाएँ। इजलास को बताया गया कि बहावलपुर अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स की मरम्मत बहाली की स्कीमें तजवीज़ की गई हैं, जिसमें गैनी वार्ड, सर्जिकल वार्ड, शोबा एमरजेंसी के पीडियाट्रिक सेक्शन, रेडियोलॉजी सेक्शन, टीबी ब्लॉक, न्यूरो सर्जरी वार्ड की मरम्मत और चीज़ों की मनसूबा जाँच शामिल है। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन डॉक्टर एहतशाम अनवर ने हिदायत की ज़ेर मरम्मत वार्ड की तामीराती काम मुकम्मल करके ज़रूरी मशीनरी की तनसीब को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि मामला को सेहत की सहूलत की फरहमी के लिए खिदमत के जज्बे से काम किया जाए और दस्तियाब वसाइल को ऐसे अंदाज में इस्तेमाल में लाया जाए। कैमरामैन खुरम शदाद के साथ फजल जावेद खान, कोहिनूर न्यूज़। गढ़ा मोड़ शहर में भी महंगाई और बिजली के बिल्स में इजाफी टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी की कॉल पर पहिया जैम और शटर डाउन हड़ताल जारी है। जमात इस्लामी के कारकुनान, ताजिरों और शहरियों की मुल्तान रोड बंद करके निगरान हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी रिकॉर्ड की गई। इस पर राना काम शाहिद की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह गढ़ा मोड़ में भी जमात इस्लामी की जानब से शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल की गई, जिसमें अंजमन ताजरान समेत तमाम मकातबे फिक्र के लोगों ने भरपूर शिरकत की। मजदूरों, रेडी बानों, रक्षा ड्राइवरों समेत तमाम मकातबे फिक्र के लोगों ने हजारों की तादाद में मेन चौक गढ़ा मोड़ में जमा होकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने निगरान हुकूमत के खिलाफ फलक शिगाफ नारे लगाए और सड़क को पीट कर एहतजाजी मुजाहरा रिकॉर्ड करवाया। बिजली के रेटों में मुसलसल इजाफा और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफे पर शहरियों ने शदीद रद्द अमल पेश किया। एहतजाजी हड़ताल में शरीक तमाम लोगों ने बैनर और कुतबे उठा रखे थे, जिनके ऊपर महंगाई के खिलाफ नारे दर्ज थे। शहरियों ने हुकूमत और महंगाई के खिलाफ दुहाइयां देते हुए कहा कि चीनी, दालें, सब्जियां, पेट्रोलियम मसनूआत समेत आटा, चावल और दीगर अशिया खुर्दोनों समेत रोजमर्रा की जरूरी अशिया की कीमतें दिन ब दिन दुगनी हो रही हैं। मुकर्ररीन ने एहतजाजी मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा कि निगरान हुकूमत सुन ले, अगर महंगाई को कंट्रोल ना किया गया और आम आदमी को रिलीफ ना दिया गया, बिजली के बिलों से
इजाफी टैक्स ना निकाले गए तो ये एहतजाजी दायराकार बढ़ाते हुए हम ऐवानों का घेराव करेंगे और ये खूनी इनकलाब होगा। इस मौका पर ताजर तंजीमों के रहनुमाओं, मेडिकल एसोसिएशन, करियाना एसोसिएशन, मोटर्स एसोसिएशन, जनरल स्टोर एसोसिएशन, मोबाइल एसोसिएशन और दीगर ताजरों ने खिताब किया और मुजाहिरीन ने खूब एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। कैमरा नाज़रीन, निगरान हुकूमत की तरफ से महंगाई के कारीवार जारी हैं। बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके गरीब आवाम और किसानों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। शहरी महंगाई से इंतहाई परेशान दिखाई देते हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे मलिक जाफर अली। जी बिल्कुल, बहाना निगरान हुकूमत की तरफ से एक ही माह में पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफा करके गरीब आदमी पर महंगाई का बम गिरा दिया गया, जबकि पहले ही गरीब तबका महंगाई की चक्की में पिस रहा है। सब्जियों, शहद, खुर्द-ओ-नोश की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। किराए भी बढ़ गए हैं। गरीब दिहाड़ीदार तबका अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला सकता, क्योंकि बिजली पहले भी महंगी हो चुकी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से किसानों को भी मुश्किलात का सामना दरपेश है, क्योंकि खादों की कीमतें भी आसमान की बुलंदियों को छू रही हैं। इनका हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि खुदारा महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब तबका सुख का सांस ले सके। जी मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उससे बात करते हैं। जी सारे महंगाई रोज बरोज बढ़ती पई है। महंगाई हर हुकूमत बेड़ी बोड़ी खली अगे जी हुकूमत आई मसे उनके कोल जान छुड़ाई है। हुण निगरान हुकूमत आई है, हर 15वें दे पेट्रोल दी कीमत वधाई खली है, हर 5वें दे बिजली दी कीमत वधदी पई है, रिक्शा दे किराए, बसां दे किराए वध जांदे, सब्जी फरोश वध जांदी, कीमत सब्जियां दी फ्रूटां दी। गरीब आवाम का जीना महाल होया पिया, बड़ी औखी जिंदगी पे हुई पई, खुदकशियां से तंग होए पे, हर आवाम खुदकशियां पे करती है। ये हालात खुदकशियां से जांदे पैने हुकूमत नूं इत्थे नहीं ते आखिरत ते जरूर इंसाफ मिलसी गरीब आवाम नूं। इस तो हुकूमत नाल अपील है कि कीमतां वापस लाइयां जान, कीमतां सस्ते पेट्रोल कीते जान, किराए घटन। साडे बच्चे स्कूल जांदे, रिक्शा दे किराए वध गए, रिक्शे वाले बेचारे वो रोंदे। एक मजदूर है बेचारा मोटरसाइकिल ते मजदूरी करन जांदा, 800 रुपया 900 1000 मजदूरी कमाइंदा, और 300 का पेट्रोल लीटर साड़। अफसोसनाक खबर शामिल करें शाहकोट से, जहां पहाड़ी वाली झील के करीब खेलते हुए 2 कमसिन बहन भाई झील में डूबकर जाँ भग हो गए। डूबने वाले बच्चों की शिनाख्त 3 साला मुकद्दर और 5 साला रमला के नाम से हुई है। एसके अमले ने मकामी अफराद की मदद से दोनों बच्चों की लाशों को झील से निकाल लिया। मरी में जमात इस्लामी की ज़ेर एहतमाम बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स और बेतहाशा महंगाई के खिलाफ रैली निकाली गई। शहरियों और कारकुनान ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। जमात इस्लामी के उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली मोहम्मद सुफियान अब्बासी का कहना था कि बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स खत्म किया जाए। जी बिल्कुल, हुक्मरान पोहोश के नाखुन ले, ऐसा ना हो अवाम घरों से निकल कर महलों का रुख करें और बैरून मुल्क जाने का मौका न मिल सके। लकी मरवत में लोड शेडिंग, महंगाई, बिजली के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाजी मुजाहरा जारी है। सनाए नौरंग बाजार मुकम्मल बंद कर दिया गया। मुजाहरे में हजारों अफराद ने शिरकत की है। मौजूदा और साबका हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी रिकॉर्ड की गई। रुख करें डेरा गाजी खान का, जहां महंगी बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ अंजुमन ताजरान और शहरी सरापा एहतजाज हैं। अंजुमन ताजरान की कॉल पर मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल। शहर के तमाम अहम बाजार बंद हैं। ताजरों ने जालमाना टैक्स के खिलाफ रैली भी निकाली और नारेबाजी भी की। जी बिल्कुल, ताजिर रहनुमाओं का कहना था कि गरीब मजदूर 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। बिजली के बिल कहां से भरे? बिजली के बिल्स में इतने टैक्सेस लगाकर बिजली महंगी की गई कि गरीब खुदकुशियों पर मजबूर है। मर्दान में भी पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली बिल्स में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज है। मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल भी जारी है। मजीद जानते हैं फैसल ज़ादा से। जी फैसल ज़ादा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? आज बिल्कुल मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह मर्दान में भी ताजर बरादरी सरापा एहतजाज बन गए हैं। बिजली के बिलों में और पेट्रोलियम मसनूआत में जो इजाफा हुआ है उसी के हवाले से यहाँ पर मर्दान में दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद किए गए हैं। इस वक्त मेरे साथ मरकजी तंजीमी ताजरान के सूबाई जनरल सेक्रेटरी ज़ाहिर शाम मौजूद है। आए उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह आज पूरे मुल्क में मुकम्मल शटडाउन है,
इसी तरह मरदान में भी आज तमाम बड़े बड़े तजारती मराकज़ बैन बाज़ार सब बंद है, मुकम्मल कम्प्लीटली शटर डाउन है। और मुतालबा ये है कि बिजली के बिलों में जो नाजायज़ टैक्सेस की भरमार है वो ख़त्म की जाए। साथ साथ में जो बिजली के बिलों में जो यूनिट में बहुत ज़्यादा इजाफे की गई है वो वापस की जाए। और साथ साथ में जो हालिया निगरान गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम मसनूआत में बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है वो वापस की जाए। और जिसकी वजह से जो हमारी ज़रूरती ज़िंदगी की अशिया है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, आम लोगों की ज़िंदगी वो मुश्किल हो गई है। लिहाजा आज तमाम बिजनेस कम्यूनिटी सर पे एहतजाज है और ये बहुत तशवीश की बात है कि अगर ये सूरत हाल रही तो इस बिल के सरमायाकार यहाँ से सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल करेंगे और साथ साथ में जो छोटे कारोबार है वो ख़त्म हो रहे हैं, जिससे हमारे मुल्क की मईशत को बहुत बड़ा नुकसान होगा। लिहाजा हमारा यह मुतालिबा है कि फिल फॉर जो बिजली के बिलों में ज़्यादती है ये वापस की जाए, टैक्सेस की जो भरमार है वो ख़त्म की जाए और गैस और पेट्रोलियम मसनूआत और जो ज़रूरी ज़िंदगी की अशिया है वो सस्ती की जाए। और इसके साथ DPO चनियोट की हिदायत पर इंसदाद मनशियात के हवाले से पुलिस के अमली इक़दाम जारी हैं। ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट ने शहरियों को इंसदाद मनशियात के हवाले से आगाही दी, पम्फलेट्स भी तकसीम किए गए। DPO अब्दुल्ला अहमद का कहना था कि जिला भर में इंसदाद मनशियात के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक की कॉल पर रतो डेरों में भी पेट्रोल बिजली की कीमतों में बार बार इजाफा करने के खिलाफ शहर भर में शटर डाउन हड़ताल जारी है। इस पर रसूलुल्लाह की ये रिपोर्ट देखिए। रत्तो डेरों में जमात इस्लामी की जानिब से बिजली, पेट्रोल और आम वरहा की कीमतों में बार बार इजाफे के खिलाफ मौलाना ज़हूर अहमद मंसूरी, हाफिज इनामुल्लाह मीरानी, ताहिर गाजी की रहनुमाई में पहिया जाम शटर डाउन हड़ताल की गई। मुजाहिरीन ने जनरल बस स्टैंड पर टायरों को नजर आतिश करके निगरान हुकूमत के खिलाफ फलक शगाफ नारेबाजी की। उसी मौके पर मीडिया से बात करते हुए मुजाहिरीन ने कहा कि आज मुल्क गिर के अंदर अमीर पाकिस्तान जमात इस्लामी पाकिस्तान के तहत जो हुक्म हुआ था एहतजाज की सूरत में, वो असल मकसद ये है कि हमारे अवाम को जो है ना बड़ा जुल्म ढाया जा रहा है कि उनके तेल बड़ा महंगा कर दिया है कि लोग निकलने पर मजबूर हो गए हैं। उनके सफ़र और ज़रूरियात चीज़ें की वजह से वो नहीं निकल सकते हैं। निगरान हुकूमत ने ये बड़ा नुकसान दिया है अवाम को कि वो जो है ना तेल की महंगाई की सूरत में और बिजली की बिलों की वजह की सूरत में ये जो है ना इजाफा किया है और अवाम बहुत परेशान है इससे। नेशनल प्रेस क्लब रत्तो डेरो के मैं शुक्रगुजार हूँ जिसने रत्तो डेरो के अवाम की ये दर्दें, ये चीखें जो अवाम चिल्ला रहे हैं, ये उनकी बातें सुन रहे हैं और ऐवानों के अंदर ये निगरान हुकूमत, ये काकड़ साहब ये सुन लें कि ये यहाँ का अवाम बहुत पीस रहा है। जो आपने बिजली महंगी की है, टैक्सें लगाई है या पेट्रोल पंप महंगा किया है, ये अवाम के ऊपर ज्यादती है। अवाम खुदकशी करने पे मजबूर हो है। खुदारा अल्लाह का खौफ कीजिए। ये हमारा पाकिस्तान, ये हमारा प्यारा पाकिस्तान है, ये हमारा इस्लामी मुल्क पाकिस्तान है, इसके ऊपर रहम फरमाएं। और ये जो इतनी महंगाई की है, ये अपना ये बिजली का जो टैक्स लगाया है ये आप वापस ले लें। ये अवाम चीख रहे हैं, ऐसा ना हो कि अवाम का हाथ हो और आपका गिरेबान हो। पूरे मुल्क की तरह यहाँ रत्तो डेरों में भी सिराजुल हक साहब की अपील पर यहाँ पर मुकम्मल हड़ताल की गई है। बड़े अफसोस की बात है कि अभी जो ये निगरान हुकूमत आई है, इसने भी आते ही लोगों को पीसना शुरू कर दिया है। बड़े अफसोस की बात है, इससे पहले PTI ने अवाम के कपड़े उतारे, फिर PDM ने अवाम की खालें उतारी, अब ये निगरान हुकूमत उतार रही है। भाई कुछ अल्लाह का खौफ भी करो। लोग खाने के लिए परेशान है, ऊपर से आप लोगों के बड़े बड़े बिल और उसके अलावा फ्यूल के इतने बड़े रेट, ये इसका कौन जवाब दे? आप लोगों को मारना चाहते हैं, ये तो खुली दहशतगर्दी है। लोगों के पास तो खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है, लोग क्या खाएं क्या पिएं। मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है, ये हुकूमत पता नहीं क्या चाहती है। हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं कि फिलफोर खाने पीने की अशिया, चीनी, फ्यूल, डीजल के रेट जो है वो कम किए जाएं। कैमरा टीम के साथ दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की कॉल पर तलहार में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल। शहरी सिविल सोसाइटी, दुकानदार एसोसिएशन, प्राइवेट स्कूल टीचर्स एसोसिएशन समेत मुख्तलिफ तबका फिक्र के अफराद ने एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत की।
کمالیہ میں بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے خلاف جماعت اسلامی اور انجمن تاجران کی اپیل پر مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال جاری ہے۔ کمالیہ بار تمام تاجر تنظیموں نے کاروبار بند کر دیے ہیں۔ اسی پر آرجے جاوید بھٹی کی رپورٹ دیکھیے۔ ملک بھر کی طرح کمالیہ میں بھی بجلی، گیس اور پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے خلاف جماعت اسلامی اور انجمن تاجران نے شہر بھر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کر دی۔ ہڑتال کی اپیل پر کمالیہ بارس میں تمام تاجر تنظیموں نے اپنے کاروبار بند کر دیے۔ سبز منڈی، غلہ منڈی اور میڈیکل سٹورز بھی بند رہے، جس کے باعث عام شہریوں کو ضروریات زندگی کا سامان خریدنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے پولیس کے دستے شہر بھر میں فلیگ مارچ کرتے رہے۔ تاجر تنظیموں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس ہوش شربہ مہنگائی، بجلی، گیس اور پیٹرولیم کی قیمتوں میں فوری کمی کر کے عوام کو مہنگائی کے عذاب سے بچایا جائے، تاکہ غریب آدمی سکھ کا سانس لے اور 2 وقت کی روٹی کھا سکے۔ ہری پور ڈومیسائل بنوانے والوں کو اب مختلف دفاتر کے چکروں سے نجات مل چکی ہے۔ ڈسٹرکٹ انتظامیہ کا احسن اقدام، اب ایک ہی آفس سے تصدیق کروا کے ڈومیسائل بنوا سکتے ہیں۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر عمران خان جدون اور اسسٹنٹ کمشنر کی پریس بریفنگ۔ اسی پر رپورٹ کریں گے راشد محمود۔ ضلع انتظامیہ کا احسن اقدام ڈومیسائل بنوانے والوں کی مشکلات کا خاتمہ کر دیا۔ محکمہ مال سمیت مختلف دفاتروں کے چکروں سے جان چھوٹ گئی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر عمران خان جدون نے ہمراہ اسسٹنٹ کمشنر ہیڈ کوارٹر کے میڈیا بریفنگ میں بتایا وہ جو 6-7 سٹیپس تھے اٹیسٹیشنز کے میں نے آپ کو بتائے ہیں، اب ہم نے اس کو آسان کر دیا۔ اب کیا ہوا ہے، صرف اس بندے کی طرف سے اپنا اقرار نامہ ہے جو کہ اپلیکنٹ ہے، اور اس کے ساتھ صرف ایک انسان، ایک بندہ، وہ ان 12 لوگ ہیں جو ہم نے اس میں شامل کیے ہیں، جو ٹیسٹرز ہیں، جو اٹیسٹیشن کر سکتے ہیں، صرف ایک اٹیسٹیشن کی مزید ضرورت ہے بس۔ کوئی پٹواری کے دفتر میں، کوئی گرداور کے دفتر میں، کوئی تحصیلدار نائب تحصیلدار کے دفتر میں اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور دفتر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنا اقرار نامہ اوپر لکھے گا، اپنے دستخط کرے گا، اور ایک اٹیسٹر ہے اس کے پاس جا کے صرف اس کی اٹیسٹیشن کروا کے وہ لے آئے گا، جس کے اوپر کے باقی ساری کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ضلع بھر کے تصدیق کنندہ کی لسٹ میں شامل 12 مختلف سرکاری اہلکاروں اور عوامی نمائندوں کے اوریجنل دستخط ہمارے پاس محفوظ ہوں گے، تاکہ اس حوالے سے بوگس تصدیق کو روکنے کے لیے ان کے دستخطوں سے مطابقت بھی پرکھا جائے گا۔ بوگس تصدیق کے ذمہ داران کو قانونی طور پر سزا و جزا کا عمل بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ نئے فارم کی تیاری میں اعلیٰ کوالٹی کا پیپر استعمال کیا گیا ہے اور ہر فارم پر ایک سیریل نمبر ہوگا۔ جماعت اسلامی کے صوبائی رہنما چودھری زاہد عمران کی قیادت میں مہنگائی کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ زبردست احتجاجی مظاہرے کے ساتھ ساتھ حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی بھی ریکارڈ کی گئی۔ مزید تفصیلات قمر گلاٹی کی اس رپورٹ میں۔ جماعت اسلامی کی قیادت کی کال پر نارمنڈی میں خوفناک مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کے نامزد امیدوار چودھری زاہد عمران کو ٹوٹانا کی قیادت میں پرامن احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، ریلی نکالی گئی۔ انجمن شہریہ، امن کمیٹی، تاجر برادری اور سول سوسائٹی نے بھرپور شرکت کی۔ مظاہرین نے مہنگائی نامنظور کے فلش شگاف نعرے لگائے۔ جماعت اسلامی کی جانب سے پرامن مظاہرے میں عوام نے شدید غم و غصہ کا اظہار کیا اور کہا کہ جب تک ہم IMF کی غلامی ترک نہیں کریں گے، قوم کے حالات مزید بدتر ہوتے جائیں گے۔ مزید جانتے ہیں مقررین۔ پچھلے چور کو یاد کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ بہت اچھا تھا، کوئی اس سے اچھا تھا، اس نے بڑا ریلیف دیا تھا، وہ کب ظالم تھا۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ میرا چور زندہ باد، تیرا چور زندہ باد۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اگر ملک کی تقدیر بدلنی ہے پھر آپ کو برادریزم سے نکلنا ہوگا، آپ کو تعصبات سے نکلنا ہوگا، آپ کو فرقہ پرستی سے نکلنا ہوگا، آپ کو بندوں کی غلامی سے نکلنا ہوگا کہ جو بندے ان کی اولادیں تو پڑھ رہی ہیں، ان کے اولاد سرمایہ دار بنتے جا رہے ہیں، میرا اور آپ کا بچہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اس لیے کہ ہم نے اسلام کو نظام کو چھوڑ دیا، ہم نے سود کے نظام کو خوش آمدید کہہ دیا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ سود کا نظام ختم کرو گے تو تمہارے اوپر خوشحالی آئے گی، غریب آدمی وہ اس کی سہولت سے فائدہ اٹھائے گا، امیر اور جو بلوں میں زیادتیاں کی ہیں اس کے خلاف احتجاج کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جو بلوں میں انہوں نے نجائز ایک تو قیمتیں بڑھائی ہیں اور اس کے اوپر جو گنڈا ٹیکس لگایا ہے، جس ٹیکس کی
चिश्तिया में सिविल वेटरनरी डिस्पेंसरी अस्पताल महार शरीफ और महता जेडू में महकमा लाइफ स्टॉक की गफलत से सहूलियात का फुकदान है। सलाह मुतासिरीन के बीमार माल मवेशियों के लिए सरकारी अद्वियात में न वैक्सीनेशन मौजूद है और न ही दूसरी अद्वियात। प्राइवेट डॉक्टर से दोनों हाथों से लटने लगे हैं। इस हवाले से मज़ीद देखते हैं ताहिरुल हसन की ये रिपोर्ट। चिश्तिया में सिविल वेटरनरी डिस्पेंसरी अस्पताल माता झेडू में चिश्तिया महकमा लाइफ स्टॉक के अमले की गफलत और लापरवाही से सहूलियात का फुकदान। सिला मुतासरीन के बीमार माल मवेशियों के लिए न सरकारी अद्वियात और न ही कोई वैक्सीनेशन दस्तियाब। सिला मुतासरीन का कहना है कि घर और फसलें पहले ही सैलाबी पानी की नज़र हो चुके हैं, जिसकी वजह से हम खुले आसमान तले जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। हमारे कई जानवर भी हलाक हो चुके हैं और जो बचे हैं वो भी बीमार हो चुके हैं। अगर उनके लिए वेटरनरी डिस्पेंसरी अस्पताल माता झेडू से कोई अद्वियात लेने के लिए जाएं तो अमला हमें अद्वियात देने की बजाय पर्चियां बनाकर प्राइवेट डॉक्टरों के पास भेज देता है, जो कि हमें दोनों हाथों से लूट रहे हैं। भाई मुकी पे सरकारी कोई नहीं, साढ़े को आमदी कोई नहीं, मुकी पे अब मैं जी 2000 रुपया तू दारा फाड़ते सटौर ते गया। आ दवाइयां मेरे को मौजूद हैं पईयां, वो रात दे मैं टीके लाई जाना ते मेरे को मौजूद हैं। पैसा साढ़े कोल कोई नहीं, असी बड़े मुसीबत है जाए करें। किसी को फाड़ते मैं 2000 की दवाई ले आंदी, कोई मदद नहीं साड़ी हो रही, बड़े जलील गोली नहीं मिली। असी नगदा पैसा ना ले आंदे ओले सटौर नजीर मुफ्त ने डी इतने बैठन। नासिन कोट अदू में भी बिजली के बिल्स में नाजायज टैक्सेस और बढ़ती महंगाई के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल जारी है। जमात इस्लामी और अंजुमन ताजरान के ज़ेरे एहतमाम रेलवे चौक पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अमीर हमजा से। जी बिल्कुल, बिजली के बिलों में नाजायज़ टैक्सेस और इसी के साथ साथ दिन ब दिन बढ़ती महंगाई के खिलाफ जो है कोट अद्दू में इस वक्त जो है मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल का सिलसिला जो है जारी है। और इसी के साथ साथ बताता चलूँ अंजुमन ताजरान और जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम जो है इस वक्त रेलवे चौक पे पुरजोर जो है एहतजाजी मुजाहरा जो है वो भी जारी है। मेरे साथ इस वक्त अमीर जमात इस्लामी कोट अद्दू फुरकान आसिफ बुज़दार मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर एहतजाज देखें, ये हड़ताल तो एक आगाज़ है। इंशाअल्लाह अगर हमारी इन मुतालबात पर हुकूमत हमारे मुतालबात नहीं सुनेगी, हमारे एहतजाज को नहीं सुनेगी, तो इंशाअल्लाह हम इस एहतजाज की तहरीक को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। हम इसमें मज़ीद क़ुव्वत लाएंगे, हम इसको मज़ीद मुज़ाहमत की तरफ जाएंगे, लेकिन हमारी मुज़ाहमत कानूनी और आइनी दायरे में होगी। 10 सितंबर को जो सिराजुल हक साहब का मुजफ्फरगढ़ जलसा है, उस हवाले से इस तहरीक के लिए कलीदी ऐलानात होंगे, उसमें इस हवाले से एक सिमत मुतय्यन होगी इंशाअल्लाह। और उसके बाद जनूबी पंजाब से इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे इस तहरीक को आगाज़ करें। और जब तक हुकूमत घुटने नहीं टेकेगी हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। हम पहिया जाम हड़ताल भी कर सकते हैं, हम शहरों में धरने भी दे सकते हैं, हम वार्ड ऑफिस का घेराव भी करेंगे। इंशाअल्लाह हम मजबूर करेंगे कि गरीब आवाम की आवाज़ को सुना जाए। आज के एहतजाज से मुतल्लिक यही है कि कोट अद्दू के तमाम ताजी तंजीमों ने, तमाम सियासी जमातों ने जो है वो यकजहती का मुजाहरा किया है। और वो तमाम के तमाम जो हैं वो अपनी पूरी जो भी बिरादरी है, जो मजलूम तबका है, जो हुकूमत जुल्म ढा रही है बिलों की सूरत के अंदर, उसके एहतजाज के लिए इकट्ठे हुए हैं। और मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, आज जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक की कॉल पर कोटशुटा तहसील हेडक्वार्टर के इंटेस हाईवे पर बिजली बिलों और महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया गया। इसी पर मजीद जानते हैं नज़ीर अंजुम अहमदानी से। जी नज़ीर, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? जी, जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक की कॉल पर आज मुल्क भर की तरह तहसील कोटशुटा में भी जमात इस्लामी ने पुरअमन एहतजाज किया और मुख्तलिफ अहदेदारान ने इस खिताब किया, जिसमें मेंबर कौमी असम्बली के जो उम्मीदवार हैं मुनीर अहमद कुलाची, इसी तरह सूबाई असम्बली के जो उम्मीदवार हैं बहत खान कुराई और चौधरी आमिर फारूक, इसी तरह तहसील अमीर ज़ाहिद हुसैन रमदानी और अनीस कमर ने भी इस मौके पर खिताब किया। जमात इस्लामी के साथ साथ दीगर जमातों, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक और दीगर जमातों में भी इस एहतजाज में हिस्सा लिया। तुम्हारे वास्ते मकान बनाएं और असा वादा करेंगे हैं इंशाअल्लाह इस जुल्म के खिलाफ जितना तुम्हारा पसीना वासी असा खून दे सुन। मेरे बिराओ, मेरे दोस्तों, हुण भी 11 जमातें दी PTM IMF नाल मुआहदा करके गई है कि बिजली दे बिल 90 रुपए तक फी यूनिट बढ़ा दो, साकू कोई परवाह नहीं। और पेट्रोल ते डीजल 350 तक कर वनो, साकू कोई परवाह कोई नहीं। साकू कर्ज दो ताकि असा वक्त आयाशा करे। तो के मरने का मकाम है। वजीर आजम पाकिस्तान कहते हैं मैं IMF से पूछूंगा तो IMF के बाप का मुल्क है।
देता हूँ, मैं बटन पे टैक्स देता हूँ, मैं कपड़े लेता हूँ तो उसके पे टैक्स देता हूँ, ये मजदूर टैक्स देता है। लेकिन मैं देखता हूँ अरबों की मिलों के मालिक वो टैक्स नहीं देते। इस नाइंसाफी को अब खत्म होना चाहिए। खबर शामिल करें कराची से, जहां 2 रोज कबल शाहराह फैसल पर टहलने वाले शेर को अदालती हुक्म पर कराची चिड़ियाघर मुंतकिल कर दिया गया। पालतू शेर ने 2 रोज से खाना नहीं खाया तो इंतजामिया को शेर के मालिक को बुलाना पड़ गया। कराची से राजब लोच की रिपोर्ट देखिए। 2 रोज कबल शाहराह फैसल कराची पर टहलने वाले शेर को अदालती हुक्म पर कराची चिड़ियाघर मुंतकिल कर दिया गया। पालतू शेर ने 2 रोज से खाना नहीं खाया तो इंतजामिया को शेर के मालिक को बुलाना पड़ गया। मालिक को देखते ही शेर ने खाना भी खाया और मालिक के गले लग गया। 2 रोज कबल शेर को शाहराह फैसल पर टहलते देखा गया था, जिसके बाद उसे महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया था, जिसे आज अदालती हुक्म के बाद चिड़ियाघर मुंतकिल कर दिया गया है। कैमरा टीम के साथ राजा बलोच को। निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकी से बोहरा कम्युनिटी के शहजादा हुसैन बुरहानुद्दीन की मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध ने शहजादा हुसैन बुरहानुद्दीन को कराची आमद पर खुश आमदीद कहा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध का कहना था कि बुरहान कम्युनिटी का सिंध की तरक्की में अहम किरदार है। निगरान वज़ीर आला सिंध का सैयदना मुफस्सिर सैफुद्दीन के ताउन से कराची यूनिवर्सिटी में लॉ डिपार्टमेंट के क़याम पर इज़हार तशक्कुर है। शहजादा हुसैन बुरहानुद्दीन ने वज़ीर आला सिंध की मेहमान नवाजी पर उनका तहे दिल से शुक्रिया भी अदा किया। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर से बोहरा कम्युनिटी के शहजादा हुसैन बुरहानुद्दीन की मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। निगरान वज़ीर आला सिंध ने शहजादा हुसैन बुरहानुद्दीन को कराची आमद पर खुश आमदीद कहा। वज़ीर-ए-आला सिंध का कहना था कि बुरहान कम्युनिटी का सिंध की तरक्की में अहम किरदार है। निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध का सैयदना मुफस्सिर सैफुद्दीन के ताउन से कराची यूनिवर्सिटी में लॉ डिपार्टमेंट के क़याम पर इज़हार तशक्कुर। शहजादा हुसैन बुरहानुद्दीन ने वज़ीर-ए-आला सिंध की मेहमान नवाजी पर उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब की हिदायत पर एंटी स्मोग स्क्वाड तश्कील दे दिया गया। एंटी स्मोग स्क्वाड मुख्तलिफ बस स्टैंड पर गाड़ियों के इंजन की इंस्पेक्शन करेगा। सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी मुजफ्फर हयात की क़यादत में इंसदाद स्मोग आगाही वॉक भी की गई। आरटी सेक्रेटरी मुजफ्फर हयात ने ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवरों को खुसूसी लेक्चर भी दिया। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। मैंने करना है आवाज। ओगी में जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक की कॉल पर बिजली के नारवा टैक्सेस और ओवर बिलिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन की जानिब से टायर जलाकर मिलाद चौक को हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। जमात इस्लामी ओगी के अमीर रियाज उस्तामा, सैयद अली हसन शाह और जुल्फ़िकार खान ने सिराजुल हक की कॉल पर लब्बैक कहते हुए आइंदा भी मुल्कगीर हड़ताल और एहतजाज करने का इंदिया दे दिया। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि ओगी में जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक की कॉल पर बिजली के नारवा टैक्सेस और ओवर बिलिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन की जानिब से टायर जलाकर मिलाद चौक को हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। जमात इस्लामी ओगी के अमीर रियाज उसामा, सैयद अली हसन शाह, जुल्फ़िकार खान ने सिराजुल हक की कॉल पर लब्बैक कहते हुए आइंदा भी मुल्क की हड़ताल और एहतजाज करने का इंदिया भी दिया है।
दूसरी जानिब कपास का पैदावारी हदफ हासिल करने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। रवा माह कपास की पैदावार के हवाले से निहायत अहम है। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली का जनूबी पंजाब में कपास और सैलाब की मौजूदा सूरत हाल से मुतल्लिक इजलास से खिताब है। कहा कि जनूबी पंजाब की नहरों में रवा माह के दौरान नहरी पानी की दस्तयाबी टेल एंड तक यकीनी बनाई जाएगी। कपास की मार्केट मुस्तहकम होने से सप्लाई चेन पर मस्बत असरात मुरतब हुए हैं। रिपोर्ट होने वाले हॉटस्पॉट एरिया में भी कीड़ों के तदारुक के लिए जदीद केमिस्ट्री के जहरों को स्प्रे किया जाएगा। ज़राअत तौसीक़ का अमला फील्ड में जाकर काश्तकार की कपास के साफ चनाई का मुतल्लिक खुद रहनुमाई से देखेगा। एशिया कप और दुनिया क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग पाक भारत मैच श्रीलंका के पाली खेल स्टेडियम में जारी है। दोनों रवायती हरीफ के साथ साथ तीसरे उम्मीदवार की भी मैदान में एंट्री। इसी पर रिपोर्ट करेंगे हमजा अब्बासी। एशिया कप 2023 का हाई वोल्टेज मैच यानी पाक भारत टाकरा आज श्रीलंका के पाली गिल स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय बैट्समैन पाकिस्तानी पेसर्स से खौफजदा शाहीन आज भारतीय सुरमाओं को धूल चटाने के लिए पुरुमीद। एक तरफ बाबर, फखर, शाहीन और शादाब, जबकि दूसरी जानिब शर्मा, कोहली, बुमराह और पांड्या। क्या बाबर बिछाएगा जीत का जाल या शर्मा चलेगा जीत की चाल? अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत दिलचस्प मैच है। अल्लाह का करम है कि हमारे पास बाबर आदम है, शहनशाह अफरीदी है और उसके बाद मोहम्मद हसन है, सारे हैं, फखर जमान है, इमामुल हक है। अल्लाह के करम फजल से आज बहुत दिलचस्प मैच है। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। मगर इन दोनों हरीफ के साथ साथ तीसरा उम्मीदवार भी मैदान में उतर आया। अभी खेल 4 ओवर्स का हुआ ही था कि बारिश ने मैदान में एंट्री मार दी। महकमा मौसमियात श्रीलंका का ये कहना है कि पाक भारत मैच बारिश की नजर हो सकता है। वक्फे वक्फे से बारिश जारी रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात श्रीलंका का ये कहना है कि स्टेडियम के ऊपर मैच के दौरान स्याह बादलों का राज रहेगा। जी नो डाउट हमारी उम्मीदें शुरू से पाकिस्तान के साथ वाबस्ता हैं और हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है ना पाकिस्तान विन करेगा इस मैच को और हम लोग इंडिया को जो है ना वो मज़ा चिखाएंगे कि इंशाअल्लाह उसको जो है ना हमेशा याद रहेगा और पाकिस्तान की टीम इस वक्त स्ट्रॉन्ग है और इंशाअल्लाह हम लोग विन करेंगे। जी हमारे पास बड़े बड़े प्लेयर हैं इंशाअल्लाह, अल्लाह के हुक्म नाल अल्लाह की मदद साथ होगी ना इंशाअल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। हाँ जी गल ये हुक्म है, ऊपर से आर्डर आते हैं अल्लाह पे, अल्लाह से आर्डर आते हैं। इंशाअल्लाह कामयाबी पाकिस्तान की होगी बफजल खुदा इंशाअल्लाह मिन कुल्ल ज़ंबी व तूब अलैकुम। बाबर 11 इंडियन टीम को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म। इससे पहले एशिया कप में दोनों हरीफ 13 बार आमने सामने हुए, जिसमें से 7 मरतबा भारत ने जीत हासिल की जबकि 5 मरतबा शाहीनों ने सूरमाओं को धूल चटाई। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की हिदायत पर कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा का रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी का दौरा है। डायरेक्टर जनरल RDA मोहम्मद सैफ अनवर जप्पा और RDA के दीगर अफसरान ने कमिश्नर रावलपिंडी का खैर मकदम किया। कमिश्नर रावलपिंडी ने RDA के मजमूई काम को सराहा। वन विंडो ऑपरेशन सेंटर RDA को मजीद बेहतर बनाने का भी हुक्म। उन्होंने हिदायत की है कि शिकायत का फौरी तौर पर अजाला किया जाए और गवर्नेंस को बेहतर बनाया जाए। पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड एसोसिएशन फ्रंट प्याफ का बिजली बिलों और पेट्रोल की बढ़ती हुई महंगाइयों के खिलाफ शदीद एहतजाज। क़यादत प्याफ के पैटर्न एंड चीफ अंजुम निसार और चेयरमैन प्याफ फहीमुर रहमान सहगल ने की। साबिक चेयरमैन प्याफ मियां मोहम्मद अली भी इस मौके पर मौजूद थे। मुजाहिरीन ने महंगाई के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। इसी पर रिपोर्ट करेंगे अली फारूक। जी बिल्कुल मैं मौजूद हूँ ये प्याफ के दफ्तर के ऑफिस के बाहर गुलबर्ग में। यहाँ बहुत बड़ा मुजाहरा हो रहा है प्याफ की तरफ से। जो ताजर और कारोबारी जो लोग हैं यहाँ मौजूद हैं और बिजली और बढ़ते हुए पेट्रोल की कीमत के खिलाफ शदीद एहतजाज किया जा रहा है। मजीद बात भी करते हैं जो इधर ताजर और कारोबारी रहनुमा मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी इसका अगर बेसिक अगर आप इसकी जो रूट काज में जाएंगे वो ये है क्योंकि हमारी डिवैल्यूएशन ही है और ये सारी जो चीज़ें हैं पावर सेक्टर की जो प्राइसेस हैं वो डॉलर से कनेक्टेड हैं। हमारे IPPs के साथ जो मुआहदे हुए हैं वो डॉलर्स में हुए हैं तो इनको रीनेगोशिएट किया जाए और ये बेहतरीन मौका है कि इस वक्त इनके साथ रीनेगोशिएशन की जाए। IPPs के साथ इनका फ्रांसिक ऑडिट करवाया जाए, हमारे लाइन लॉसेस हैं उन पर काबू पाया जाए और ये जो सब्सिडीज हैं नाजायज़ हर इदारे में उनको ख़त्म किया जाए। जी इन्फ्लेशन आपको पता है
ऑल टाइम हाई है, फूड इन्फ्लेशन भी है और हर तरह की इन्फ्लेशन मौजूद है। बिजली की प्राइसेस कॉन्टीन्यूसली बढ़ती जा रही हैं और कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही। इसी तरह पेट्रोल और डीजल जो है पिछले 18 दिनों में 40 रुपए लीटर के करीब ये बढ़ गया है और डॉलर आपका खड़ा नहीं हो रहा, मार्कअप आपका बढ़ता जा रहा है। ना इन हालात में इंडस्ट्री चल सकती है, ना इन हालात में तजारत हो सकती है। आम बंदा इतना मायूस है और उसके बस में ही नहीं है कि वो इस महंगाई का मुकाबला करे। लोग खुदकशियां कर रहे हैं और बहुत सारे जो है मुआशरे में खराबियां इसके साथ आ रही हैं। जी मैं समझता हूँ आज पूरी पाकिस्तान की कौम सड़कों पे है, ताजर सड़कों पे है, सनतकार तर्जो सड़कों पे है और तमाम मैं समझता हूँ अवाम आज इस बिजली के इजाफे को कबूल नहीं कर रही। मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि आज 3 स्टेप लें, IPP का मुहासबा करें। IPP जो है वो 25 करोड़ अवाम का खून चूस रही है। चंद हजार लोग बिजली चोरी कर। बहुत शुक्रिया। ये नाज़रीन गुफ्तगू सुनी है, ये अपना मियां मोहम्मद अली साहब की, प्याफ के रहनुमाओं की भी बातचीत सुनी है और ये उन्होंने फौरी तौर पे हुकूमत से मुतालबा किया है कि बिजली और पेट्रोल की कीमतों में फौरी तौर पे कमी लाई जाए और वरना ये एहतजाज का सिलसिला फिर जारी रहेगा और लोग सड़कों पे निकलेंगे और हड़ताल भी करेंगे। जी रावलपिंडी के नवाही गांव में अहलियाने इलाका ने बेहतरीन तिबी खदमात के एतराफ में डॉक्टर मोहम्मद अकरम के नाम से मेडिकल सेंटर बराए रफाए आमा कायम कर दिया। मजीद जानते हैं रावलपिंडी से खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी 50 साल अपनी तिब्बी पेशा वराना खिदमात सर इंजाम देने वाले मरहूम डॉक्टर मोहम्मद अकरम के नाम से मंसूब अहलियाने इलाका ने इनकी खिदमात के इतराफ पर गांव मुगल रावलपिंडी में मेडिकल सेंटर बराए रफाए आमा कायम कर दिया। यूनिक कौंसल मुगल में कायम हलाल अहमद डिस्पेंसरी, जिसमें 1968 से लेकर 2022 तक अपनी 50 साल तिब्बी पेशा वराना खिदमात इंजाम देने वाले डॉक्टर मोहम्मद अकरम, जिनका ताल्लुक किला दीदार सिंह गुजरावाला से था, इनकी वफात के बाद अहलियाने इलाका ने इनकी खिदमात के इतराफ में डॉक्टर मोहम्मद अकरम मेमोरियल मेडिकल सेंटर के इंतजामात मुकम्मल करने के बाद गुज़िश्ता रोज़ 10 ज्यादा नशीन दरबार आलिया कल्याम शरीफ साई मोहसन फकीर और साबिक चेयरमैन यूसी मुगल मलक नूर अहमद ने किया। इस मौका पर नंबरदार मिर्जा अनवार अहमद व दीगर मोअज़्ज़िज़ीन इलाका शरीक हुए। कैमरामैन मखदूम हमदानी के साथ खुरम शहजाद, कोहिनूर न्यूज़, रावलपिंडी। और अब आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तालीमी इदारों की बेहतरी के लिए स्कूलों की फहरिस्त मुकम्मल करके प्लान तैयार कर लिया गया। मुंतखब सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर, नसाबी, हम नसाबी, गैर नसाबी सरगर्मियों पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। मुंतखब स्कूलों में उस्ताज़ा और ट्रेनिंग तलबा की किरदार साजी और खेलों पर भी खुसूसी तवज्जो होगी। रतोडेरो के करीब गांव मजार खान शहर में गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल नसर शहर 10 साल से बंद है। गांव के बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो गया है। स्कूल को ताले नहीं, तालीम चाहिए। इसी पर मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं असमतुल्लाह की ये रिपोर्ट। रतोदेरो के करीब गांव मजार खान शहर में कायम गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल नज़र शहर गुज़िश्ता 10 सालों से बंद। गांव के बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। शोबा तालीम ने भी आंखें बंद कर दी। स्कूल को ताले नहीं, तालीम चाहिए। स्कूल खुलवाने के लिए गांव के मकीने बच्चे बड़े निकल आए। सख्त एहतियात करते हुए उन्होंने कहा कि मास्टर अचनि कोन था, निडरा ॿार 100 असांजा ॿार तकलीफ़ में आहिनि। असांखे न को पटे वालो आहे, न को चौकीदार आहे, न का स्कूल मालिकी आहे, न बाबा उहे बि कोन आया आहिनि हिन महिल ताईं विज़िट ते। असांजो मुतालबो इहो ई आहे त असांखे पढ़ाई मिले। मज़ार खान शहर 10-12 साल थी विया आहिनि, स्कूल बंदि लॻो पियो आहे। स्कूल जी जेकी अचे थी कमीशन मास्तर खणी था वञनि, पटे वाला बि पंहिंजा रखिया अथनि, हर शइ पंहिंजा ॻोठा वारनि खे लेखनि ई न। हिते उस्ताद बि नथा अचनि, न को 3-4 उस्ताद अचनि, ॿार बि असांजा गंज आहिनि। पढ़ाइनि न रहंदो, कुर्सियूं बेंचा खयूं हलिया विया, बुक किताब खणी विया। उहे मास्तर खणी आया न, हाणे मास्तरनि ते असां बि त मज़दूरी गॾा ते बचड़ा पालियूं या हाणे बीहूं बेरोज़गार थी। हितां पटे वाला हुजूं त ख़बर पए त दाई मास्तर हे आहे हिन जे गॾु। मुतलाबाद बिल्डिंग बि ठही मिले, नंढड़ा बि असांजा स्कूल, मास्टर बि मिलनि, स्कूल बि हले। ताला न खपनि, असांखे स्कूल खपे, ॿार पढ़नि। असां तौबा थी विया, असां माल चारे, असां स्कूल खुलंदो, असां पढ़ंदासीं हिते। असां तालीम खपे हिते।
हिंदू पंचायत की कॉल पर गौसपुर, कंदकोट, तंगवानी, करमपुर, बख्शापुर समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में बदअमनी के खिलाफ शटरडाउन हड़ताल। तमाम कारोबारी मराकज बंद हैं। मक्खी, जगदीश कुमार, सागर कुमार और दीगर की बाजियाबी का मुतालबा कर दिया। हिंदू पंचायत की जानिब से गौसपुर शहर में 3 दिन शटरडाउन हड़ताल जारी रहेगी। मुजाहिरीन का कहना है कि मुखबियों की बाजियाबी तक गौसपुर, कंदकोट समेत जिला भर के तमाम शहरों में हड़ताल भी जारी रहेगी। खबर शामिल करें पाक वतन से, जहां दरिया सतलुज खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया है। हुकूमत ने सैलाब मुतासिरीन को बेयार और मददगार छोड़ दिया। इस पर तारिक हुसैन भट्टी की रिपोर्ट देखिए। जी बिल्कुल, भारत की तरफ से छोड़े गए सैलाबी रेलों ने दरिया सतलुज की पट्टी पर तबाहकारियां मचा दी। लोग दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। हजारों एकड़ अराजी दरिया बुर्द होगी, सैकड़ों छोटी बड़ी आबादियां दरिया बुर्द होगी। इस वक्त मैं दरिया सतलुज के किनारे पर मौजूद हूँ। मेरे साथ इस वक्त मुखय्यर हजरात मौजूद हैं जो सैलाब मुतासिरीन की मदद करने के लिए आई हैं। उनसे बात करते हैं कि वो सैलाब मुतासिरीन की किस तरह मदद कर रहे हैं और क्या पैगाम देना चाहते हैं। ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਦੇਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਨੇ। ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਕਦਾਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਮੁਖੱਯਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਕਦਾਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਵੇਖੇ ਜਾਵਣ। ਜਿਤਨੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਆਈਏ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਵੰਡਾਈਏ। आज जी जैसा कि आपने मुखय्यर हजरात की बात सुनी, उनका कहना है कि हमारे दुख दर्द साझे हैं। जब हुकूमत ने इन सैलाब मुतासरीन से मुंह मोड़ लिया तो हम जमात इस्लामी की कॉल पर मुल्क गिर हड़ताल जारी है। मुल्क के मुख्तलिफ छोटे बड़े शहरों में एहतजाजी मुजाहरे, रैलियां, कारोबारी मराकज, बाजार बंद हैं। इस्लामाबाद में सूरत हाल कुछ तब्दील है। इस्लामाबाद के ज्यादातर मार्केट्स और बाजार खुले रहे। मजीद जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ मुस्तफा खान की इस रिपोर्ट में। आज 2 सितंबर को जमात इस्लामी की कॉल पर मुल्क गिर हड़ताल शुरू है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। इस्लामाबाद के सेक्टर G9, जंग सजदा, F10, जिना सुपर मार्केट, I9 और I10 मरकज में मुतअद्दिद मार्केट्स बंद हैं, लेकिन इस्लामाबाद की ज्यादातर मार्केट और बाजारें आज भी खुली हैं। इनका कहना था कि हमने अपने यूनियन सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमल बलोच के कहने पर 31 अगस्त को शटर डाउन हड़ताल की थी। आज हमें अपने सदर की जानिब से कोई हुक्म नहीं मिला और दुकानें खुली रहेंगी। दूसरी जानिब अजमल बलोच साहब ने कहा कि हमने जमात इस्लामी को समझाने की कोशिश की, मगर हमारा इत्तेफाक नहीं हुआ और हड़ताल की तारीखें अलग हो गईं। जमात इस्लामी का हड़ताल के दौरान कहना था कि बिजली की कीमतों में इजाफे ने जीना मुहाल कर दिया है। बिजली की कीमतों में कमी की जाए वरना एहतजाज जारी रहेगा। अगर बिजली की कीमतों में कमी ना की गई, हम किसी बड़े फैसले पर मजबूर होंगे। हमारे बड़े फैसले को संभालना आपके लिए मुश्किल होगा। बेहतर यही है महंगाई कंट्रोल करें और आवाम को रिलीफ दें। दूसरी जानिब शहर कायद में 2 रोज कब्ल शाहराह फैसल पर ठहरने वाले शेर को अदालती हुक्म पर कराची चिड़ियाघर मुंतकिल कर दिया गया। पालतू शेर ने 2 रोज से खाना नहीं खाया तो इंतजामिया को शेर के मालिक को बुलाना पड़ गया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे राजा बलोच। 2 रोज कबल शाहराह फैसल कराची पर टहलने वाले शेर को अदालती हुक्म पर कराची चिड़ियाघर मुंतकिल कर दिया गया। पालतू शेर ने 2 रोज से खाना नहीं खाया तो इंतजामिया को शेर के मालिक को बुलाना पड़ गया। मालिक को देखते ही शेर ने खाना भी खाया और मालिक के गले लग गया। 2 रोज कबल शेर को शाहराह फैसल पर टहलते देखा गया था, जिसके बाद उसे महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया था, जिसे आज अदालती हुक्म के बाद चिड़ियाघर मुंतकिल कर दिया गया है। कैमरा टीम के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज, कराची। नाज़रीन, आपको बताएं कि शाहकोट में जमात इस्लामी और सिविल सोसाइटी, वकला बरादरी और ताजिर बरादरी का बिजली बिल्स और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज जारी है। महंगाई के सताए अवाम दुकानदारों ने दुकानें बंद करके जबरदस्त एहतजाज किया। कबूला शरीफ में भी बिजली के बिलों में बेजा टैक्सेस और महंगाई के खिलाफ शटरडाउन हड़ताल जारी है। तमाम छोटे बड़े कारोबारी मराकज और मार्केटें बंद हैं। जमात इस्लामी और ताजरों की जानिब से भी एहतजाजी रैली निकाली गई। कोट
कोटछुट्टा के इलाके चोटी बाला में सीनियर सहाफी शानी खान चंगवानी के डेरे पर दावत का एहतमाम किया गया। चौकी इंचार्ज सजाद हुसैन लाशारी, कांस्टेबल सरवर खान जोकियानी, सलेमान खान, साबिक चेयरमैन हसनैन खान लुघारी, नईम खान चंगवानी, हफीज खान बबर, सुल्तान खान नांगरी भी मौजूद थे। पाकपतन में सैलाब के सताए किसान खाद की ब्लैक में फरोख्त के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। जिला इंतजामिया और महकमा ज़राअत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। किसान इत्तेहाद पंजाब के अहदेदारों का कहना था कि सतलुज में सैलाब से हमारी फसलें तबाह हो चुकी। जिला इंतजामिया और महकमा ज़राअत की चश्मपोशी के बायस खुले आम खाद की ब्लैक मार्केटिंग जारी है, जिस पर पाबंदी लगाई जाए। सराय आलमगीर में भी जमात इस्लामी बिजली बिल्स में इजाफी टैक्स के खिलाफ मुजाहिरीन सरापा एहतजाज हैं। ताजिर बरादरी भी मेन बाजार में अलामती शटर डाउन करके एहतजाज में शरीक है। रैली की क़यादत मलिक अली अवान डॉक्टर सदीक ने की। पुरअमन एहतजाजी रैली मेन सिटी रोड से खंडा चौक तक निकाली गई। बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ मुल्क भर की तरह जिला टंडोला हियार में भी जमात इस्लामी और ताजिर बरादरी की तरफ से शटर डाउन हड़ताल की गई है। जमात इस्लामी टंडोला हियार के ज़रिए तमाम रैली निकाली गई। रैली से अमीर जमात इस्लामी दीदार हुसैन बैरानी, राव जवेद अली, हाजी शफीक और बकार मेमन ने खिताब किया। मजीद जानते हैं जाहिद न्याज कायम खानी से। डीपीओ शेखुपुरा की हिदायत पर मुनशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। डीएसपी फिरोजवाला की सरबराही में एसएचओ थाना फैक्ट्री एरिया मलिक मुख्तार की टीम के हमरा मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई हुई। मुतादिद मुल्जिमान को मुनशियात सप्लाई करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। जमात इस्लामी मुल्क की वाहिद जमात है जो अवाम पर होने वाले मज़ालिम पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है। जमात इस्लामी चाहती है कि अवाम जमात इस्लामी के साथ तले अपने हकूक़ के लिए बाहर निकले। तला गंग में जमात इस्लामी के रहनुमा मलिक मोहम्मद खान, मकबूल हुसैन, फैसल शहजाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि अवाम अगर अज खुद बाहर निकले तो 9 मई जैसे वाक़यात हो सकते हैं। मुल्क के दीगर शहरों की तरह इलाहाबाद में भी अंजुमन ताजिरान की कॉल पर मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल किया गया। छोटे बड़े कारोबारी मराकज बंद है। रैलियां निगरान हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी रिकॉर्ड की गई। इसी पर मज़ीद तफसीलात अरशद सामल से जानेंगे। आज बिल्कुल बिजली की बढ़ती हुई कीमतों और पेट्रोल और डीजल की कीमतों के खिलाफ इलाहाबाद में जो एहतजाज जारी है, लोग सड़कों पर निकल आए हैं। इस वक्त मैं चौक इलाहाबाद में मौजूद हूँ। लोग एहतजाज कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ मुजाहिरीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। उनका इस हवाले से क्या कहना है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि पूरे पाकिस्तान में शटर डाउन हड़ताल है, इसी तरह चौक इलाहाबाद में भी इलाहाबाद की गयूर अवाम बाशऊर अवाम ने पूरा इलाहाबाद शहर बंद किया हुआ है और चौक में पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। ये जो बिजली का बम गिराया गया और पेट्रोल पंप का बम गिराया गया है, ऐसे ही चीनी जितनी भी महंगाई है, सब के खिलाफ इलाहाबाद की अवाम सरापा एहतजाज है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह लाला मूसा में भी ताजिर बरादरी ने गलियाना चौक में पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मरकजी अंजुमन ताजिरान की अपील पर मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की गई। सीआईए इकबाल टाउन पुलिस का तालीमी इदारों के गिर्द मुनशियात फरोख्त करने वालों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। डीएसपी सीआईए मोहम्मद अली बट की हिदायत पर इंस्पेक्टर वकास की टीम के हमरा कार्रवाई हुई।
لاری اڈا کے علاقے سے منشیات فروش گرفتار کر کے قبضے سے 1 کلو سے زائد آئس برآمد کر لی گئی۔ اس پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے۔ جی وسیم، بتائیے گا کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس اس حوالے سے؟ دیکھیں، پنجاب حکومت کی جانب سے تعلیمی اداروں کے گرد و نواح میں منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے، تو وہیں پر جس طرح سے لاہور پولیس کی جہاں انفارمیشن ختم ہو جاتی ہے تو وہیں پر سی آئی اے کی شروع ہو جاتی ہے۔ سی آئی اے پولیس میں جو سی آئی اے میں تعینات ہیں پولیس افسران، ان کی جو بات کی جائے تو وہ ہر چیز پر جو ہے وہ نظر رکھتے ہیں، چاہے وہ کوئی منشیات فروش ہو یا اس کے علاوہ کوئی ڈاکو ہو۔ تو اسی پر اگر دیکھا جائے تو ڈی آئی جی سی آئی اے ملک لیاقت علی لاہور کے تمام سی آئی اے سے باقاعدہ میٹنگ بھی کر رہے ہیں، جس کے بعد اثرات یہ ہوئے ہیں کہ سی آئی اے اقبال ٹون کی بات کی جائے تو ڈی ایس پی سی آئی اے اقبال ٹون محمد علی بٹ اور ان کی ٹیم وقات انسپیکٹر نے جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے ملزم سیف اللہ کو لاریڈا کے علاقہ سے منشیات سمیت گرفتار کیا ہے۔ جس طرح سے ترجمان سی آئی اے کی بات کی جائے تو اسد رضا کے مطابق ملزم کے قبضہ سے لاکھوں روپے مالیت کی اعلیٰ کوالٹی کی آئس برآمد ہوئی ہے، جس کی مالیت لاکھوں روپے میں بتائی جاتی ہے، جس کو تعلیمی اداروں کے گرد و نواح اور اندر فروخت کیا جانا تھا۔ جبکہ میں بتاتا چلوں کہ ملزم سیف اللہ قبائلی علاقوں سے منشیات خرید کر لاہور کے تعلیمی اداروں کے گرد و نواح میں اور تعلیمی اداروں کے اندر فروخت کرتا تھا۔ کچھ لوگ اس طرح سے بھی ہے کہ لاہور میں جو منشیات فروشی کرتے ہیں تو انہوں نے آگے بندے رکھے ہوئے ہیں اور یہ جو ہے وہ قبائلی علاقوں سے منشیات لا کر ان کو دیتا تھا۔ سی آئی اے کی انفارمیشن بڑی تیز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر سی آئی اے موجود لاہور کی نہ ہو تو جگہ جگہ لاہور میں ڈاکو پھیرے ہوں۔ بڑے محنتی تجربہ کار جو ہے وہ یہاں پر سی آئی اے پولیس میں جو ہے وہ فیصد تعینات کیے گئے ہیں، جس طرح سے فاروق اصغر اوان ہے سی آئی اے چونگ میں تعینات ہیں، محمد علی بٹ صاحب ہیں وہ سی آئی اے اقبال ٹون میں ہے، راشد امین بٹ ہے، جس طرح سے غازی آباد میں آئے روز کوئی نہ کوئی یہ ڈاکو پکڑ کر جو ہے وہ رونق لگائی رکھتے ہیں، کیونکہ کبھی کسی کے قبضہ سے کروڑوں روپے مالیت برآمد کی جاتی ہے جو لوٹی ہوئی رقم ہوتی ہے، کسی کے قبضہ سے بھاری مقدار میں جو ہے وہ منشیات برآمد کی جاتی ہے۔ تو یہیں پر جو اگر دیکھا جائے یہ لوگ جب چیزیں پکڑتے ہیں، چاہے وہ منشیات ہو چاہے وہ کوئی بھی ایسی چیز ہو، تو اس کے خلاف جو ہے وہ باقاعدہ کاروائیاں بھی عمل میں لائی جاتی ہیں اور ان کو جیل بھجوایا جاتا ہے۔ خاص کر ڈی آئی جی سی آئی اے لیاقت علی ملک کی بات کی جائے تو روزانہ کی بنیاد پر لوگوں سے چھینی ہوئی جو رقم ہوتی ہے، جو ریکوری کی صورت میں جو ہے ان کو واپس بھی کی جاتی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سی آئی اے پولیس جو ہے وہ بڑی متحرک ہے، ملزمان کے خلاف ہر طرح کے ملزمان کو گرفتار کرنے میں یہ اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ جس طرح سے میں عموماً کہتا ہوں جہاں پر لاہور پولیس کی آپریشن ونگ ہو یا انویسٹیگیشن ونگ ہو، جہاں پر ان کی انفارمیشن ختم ہوتی ہے تو وہیں سے جو ہے وہ سی آئی اے پولیس کی انفارمیشن شروع ہو جاتی ہے۔ تو اسی پر لاریڈا کے علاقہ سے سیف اللہ نامی ملزم کو گرفتار کر کے اس کے قبضہ سے لاکھوں روپے مالیت کی اعلیٰ کوالٹی کی جو آئس ہے، جس طرح سے آئس کا جو نشہ کرتے ہیں، 3 دن وہ جاگتے ہیں، 3 دن وہ سوتے ہیں، یہ نوجوان نسل میں بڑی جلدی سے جو ہے وہ تباہی مچا رہی ہے۔ آئس کا نشہ جو ہے وہ بندے کو جو ہے وہ دنوں میں موت کی طرف گامزد کیا جاتا ہے، اور والدین سے بھی جو ہے وہ پولیس افسران نے اپیل کی ہے کہ اپنے بچوں پر کڑی نگاہ رکھیں اور آئس جیسے نشے سے جو ہے وہ ان کو چھٹکارا دلوایا جائے۔ جی وسیم صاحب لاریڈا پولیس کی کارروائی کا احوال بتا رہے تھے، بہت شکریہ وسیم۔ خبروں کی تمام تر تفصیلات آپ نے جانی اور اس کے ساتھ کوہنور نیوز کا علاقائی خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ دیکھتے رہیے کے این نیوز۔